मैम अभी भी हो रहा है ना आपके फोन में रिकॉर्डिंग दिख रहा है ना आपको? यस सर रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, अभी मैंने आपको होस्ट ही बना दिया, को होस्ट नहीं। अभी मैं होस्ट नहीं हूँ, आप ही होस्ट हो, ठीक है? ओके सर, चलेगा। अच्छा मैम, मैं और सर लीव कर। ये हाँ, होने के बाद सर कुछ करना नहीं है ना, ऑटोमेटिकली नहीं नहीं, रिकॉर्ड हो जाएगा ना? हाँ कुछ नहीं करना, ओके आपको लीव करना है, एंड मीटिंग करना है, वो अपने आप क्लाउड पे रिकॉर्ड हो जाएगा। ओके आगे का चलेगा चीज सर। मैं कर दूंगा। ओके ओके थैंक यू। ओके मैम, बाय बाय। कुछ होगा बाय प्रॉब्लम तो सर। आप मुझे फोन कीजिए, कोई प्रॉब्लम जी श्योर जी सर। नहीं। ओके, बाय। ओके बाय सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, आई विल स्टार्ट शार्प एट 10:35। ओके। ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, ma'am. Okay, just give me a second. हेलो बोलो कोई एक जन। Hello. प्लीज से हेलो।
Hello, yes, am I audible to you? एक मिनट, मेरा उससे बाहर आवाज आ रहा है, एक सेकंड. Say hello. हेलो बोलो बच्चों, कोई एक जन हेलो बोलो. हेलो. हाँ, ओके ओके, ठीक है. Now see, yesterday we have started with pH. ठीक है, then we have ended with the types of salts. Do you remember this? Correct. We have seen what are the different types of salt. We have seen 4 different types of salt. That is strong acid, strong base. Will give you the salt which is having pH equal to 7. Then we are having strong acid and weak base, which is giving us a salt which is showing pH lesser than 7, which is slightly acidic in nature. Then we have a solution or whatever the titration, weak acid and strong base, in which the salt formed is showing pH greater than 7. And finally, we are having weak acid and weak bases, which are showing salt equal to pH equal to 7. Okay? Now today we will study how these pH are changes, why we are getting these different types of salts with a different pH. It all depends upon the hydrolysis. Now, first of all, I will start with the first part, that is strong acid and strong base. Please pay attention. It is very simple and very, very easy. Okay? I will say here my HCl is a strong acid. I'm going to take over here strong base, that is NaOH. It will give me NaCl plus H2O. ठीक है, अभी मुझे क्या प्रूव करना है कि ये जो सॉल्ट बना है इट इज हैविंग पीएच इक्वल टू 7. ठीक है, दिस आई हैव टू प्रूव. कैसे प्रूव करेंगे? I will take this NaCl, this salt I will take, I will put it in the water. What is my observation? It will form Na plus and Cl minus. इतना clear हुआ सबको? What we are doing here? First of all, we will see the reaction. ठीक है, what is the reaction? HCl is a strong acid. It will react with strong base, forms NaCl, H2O. Correct? NaCl is neutral in nature, that is pH equal to 7. अभी ये हम लोग को प्रूफ करना है. तो मैंने क्या किया, ये जो सॉल्ट बना था इसको ले लिया, उसको पानी में डाला. It will form Na plus, which is in the aqueous medium, and Cl minus, which is also in the aqueous medium. बराबर है? अब देखो हाँ बच्चों, ये जो HCl है और ये जो NaOH है, these two are strong electrolytes. I have told you all the strong acids and strong bases are strong electrolytes. So they will dissociate almost completely. Correct? They will dissociate almost completely. अब ये जो मैंने Na plus और Cl minus लिया, अगर उसको पानी में डाला तो वापस से मुझे बैक रिएक्शन क्या मिलेगा? I will get over here HCl plus NaOH only. Getting my point? तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है. You can see the reactants and the products are exactly same. There is no reaction with the water. Again, I'm repeating. Listen it very, very carefully. I said I have taken over here strong acid and strong base. It will give me a salt of NaCl and water. I want to prove that this pH is equal to 7. So मैंने क्या किया? I have taken over here NaCl. I'll put it in the water. Aqueous means water. As soon as we will put it in the water, it will form Na plus and Cl minus. अब ये Na plus और Cl minus maximum amount में break हो गया. Why? Because my acid and base, these two are strong electrolytes. So they will dissociate almost completely. अब उसको आप पानी में कितना भी डालोगे तो बैक रिएक्शन होने वाला है क्या? दोबारा से हाइड्रोलिसिस होने वाला है? नहीं होता है. तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो एग्जैक्टली सेम आ जाता है रिएक्टेंट जैसा. मीन्स माय cation and anion, see what I'm using the word, my cation and anion are not having any tendency to react with the water. Why it is not reacting with the water? Because it is the salt of strong acid and strong base, which will dissociate almost completely.
and that is why whatever the pH of this NaCl we are getting is exactly equal to 7. ठीक है, वापस से आई एम रिपीटिंग, जो लोग लेट ज्वाइन हो गए, लिसन इट वेरी केयरफुली, बहुत ही लॉजिकल सी चीज है. I will take over your strong acid and strong base. They will form a salt NaCl. I want to prove that it is showing pH equal to 7. तो मैंने ये लिया, इसको वापस से पानी में डाला, तो it should form Na plus and Cl minus. मतलब ये वाटर के साथ बैक रिएक्शन नहीं कर रहा है. Why? Because HCl and NaOH, these two are strong electrolytes. Strong electrolyte का definition क्या था? Which will dissociate almost completely into the aqueous solution. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आयन तो बन गए, तो मैक्सिमम हमारा क्या आएगा? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों सेम है. करेक्ट, बिकॉज देयर इज नो रिएक्शन, देयर इज नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विद द वाटर, सो नो हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस. आप यहाँ पे क्या लिखोगे? नो हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम गेटिंग pH of NaCl equal to 7. ये फर्स्ट पार्ट सबको समझा? जैसे जैसे मैं आपको आगे आगे के पार्ट समझाऊंगी ना, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. फर्स्ट पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. हाँ, ठीक है. चलो अभी हम करेंगे सेकेंड पार्ट. ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या लेंगे? चलो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस ले लेते हैं. अभी ये भी ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है. आई विल टेक ओवर योर स्ट्रॉन्ग एसिड एज H2SO4 एंड वीक बेस ले लिया, चलो कॉपर हाइड्रोक्साइड. ये आपके टेक्स्ट बुक के एग्जांपल्स में ले रही हूँ. ठीक है, अब रिएक्शन कैसे होगा बच्चों, देखो. हाँ, CuOH twice copper hydroxide reacts with sulfuric acid to give you copper sulfate and water. ठीक है, it will give me copper sulfate and water. बराबर है. अभी मैंने इसको बैलेंस नहीं किया इक्वेशन को, कि तुम लोग बाद में बैलेंस कर लेना. समझा? अभी ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2H2O हो जाएगा. ठीक है, अब देखो. हाँ, ये क्या है? दिस इज माय वीक बेस, दिस इज माय स्ट्रॉन्ग एसिड. तो मुझे क्या प्रूव करना है? कि ये जो सॉल्ट बना है इट इज शोइंग pH लेसर देन 7. दिस आई हैव टू प्रूव, यस और नो? ठीक है, अब ये pH लेसर देन 7 है, मतलब इट इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर. दिस आई हैव टू प्रूव. तो मैं क्या करूंगी? अगेन आई विल टेक दिस सॉल्ट. कौन सा सॉल्ट ले लिया? कॉपर सल्फेट का. ठीक है, CuSO4 ले लिया. Just put it in the water. You will get Cu2 plus and SO4 2 minus. इतना क्लियर हुआ कि नहीं? पहले इतना बोलो. इज इट क्लियर? मुझे क्या प्रूव करना है? जो सॉल्ट लेंगे ना उसको पानी में डाल देने का वापस. So it will form Cu2 plus aqueous and SO4 aqueous. अब देखो बच्चों, ये SO4 किधर से आया था? स्ट्रॉन्ग एसिड से आया था ना. ध्यान से सुनना, SO4 किधर से आया? स्ट्रॉन्ग एसिड से आया. स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. बराबर है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस डिसोशिएट हो गए. तो क्या ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा? नहीं रिएक्ट करेगा. सो देयर विल बी नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विथ वाटर. किसकी टेंडेंसी नहीं है वाटर के साथ रिएक्ट करने की? SO4 2 minus की, बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, मीन्स इट्स अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. लेकिन जब आप बात करते हो Cu2 plus आयन की, तो this Cu2 plus ion is obtained from weak base. When it is a weak base, it can back react, which is called as hydrolysis. It can react with the water to form copper hydroxide and hydronium ion. अब ये hydronium ion क्या है? pH ना, acidic in nature, H plus ions, एसिडिक इन नेचर. और इस वजह से हम लोग को ये जो सॉल्ट मिलता है, कौन सा वाला सॉल्ट? CuSO4 इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर. तो अगर आप इस सोल्यूशन के अंदर ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा. ठीक है, और हम लोग को हमेशा जो कॉपर सल्फेट मिलता है इट इज ऑब्टेन्ड इन द टर्बिड फॉर्म. टर्बिड मतलब जैसे आप लोग देखो कोई भी मेडिसिन ले ली और उसको पानी के अंदर डाला तो कहते थोड़ा सा टर्बिडिटी दिखता है ना, मैला दिखता है. तो उसको निकालने के लिए we have to add excess amount of sulfuric acid. समझा? So because of that your copper sulfate is acidic in nature. वापस से मैं रिपीट कर रही हूँ. देखो क्या बोला मैंने? I have taken over here a very strong acid that is sulfuric acid. ठीक है, a very weak base which is copper hydroxide. बराबर है.
अब इन दोनों का जब रिएक्शन किया, so I will get over here copper sulfate and water. See again I am saying I have not balanced the equation. You can balance the equation by your own. शायद से यहाँ पे 2 आएगा या 4 आएगा, कुछ तो आएगा, ठीक है। मुझे क्या प्रूव करना है कि ये जो कॉपर सल्फेट बना है it is acidic in nature, means it is slightly acidic in nature. This I have to prove. कैसे prove करेंगे? I will just take this salt, I will put it in the water. When I'm going to put in the water, ये जो sulfate है, will this sulfate react with the water? No. Why? Because it is obtained from strong acid. Strong acid मतलब strong electrolyte. So it does not have any tendency to react with the water. तो इसका reaction तो cancel हो गया. अब कौन बचा? Copper. Copper is a weak electrolyte. It can back react with the water, which is called as hydrolysis. तो जब आप hydrolysis करोगे ना बच्चों, तो हम लोग को क्या मिलता है? CuOH twice and hydronium ion. अब ये जो hydronium ion है, वो इसके acidic character का main reason है, क्योंकि hydronium ion मतलब वही ना H+ ions, बराबर है. And because of this, if you put litmus paper, blue litmus paper, it will turn red in color. आया समझ में? और ये जो copper sulfate है बच्चों, it will be always present in a turbid form. So in order to remove that turbidity, we have to add excess amount of sulfuric acid. और इस तरह से इसकी turbidity चली जाती है, clear solution मिलता है. So that is why this copper sulfate is what? Acidic in nature. ये किसको नहीं समझा यहाँ तक? पहले इतना बोलो. Everybody understood these two parts? मतलब आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका टेंडेंसी होगा नहीं पानी के साथ रिएक्ट करने का, बराबर. और अगर वीक होगा तो इट कैन रिएक्ट विद दी वाटर, विच उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस हो जाएगा एंड वी विल गेट दी एसिडिटी और बेसिसिटी. क्लियर? ओके, चलो, वेरी गुड. अब हम क्या करेंगे? थर्ड टाइप. अच्छा, एक और बार बोलूं क्या? ऋषि, डू यू वांट मी टू रिपीट दिस? ओके ओके, ठीक है. देखो, व्हाट आई सेड, वी आर टेकिंग ओवर, ऊपर से बताती हूँ, वापस से देखो ध्यान से. वी आर टेकिंग ओवर योर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. सो HCl लिया, NaOH लिया, दोनों भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है. सो आई विल टेक ओवर योर NaCl. NaCl को पानी में डाल दो, क्या बनाएगा? Na+ and Cl-. करेक्ट? Now this Na+ and Cl- are obtained from strong acid and strong base. So दोनों की भी टेंडेंसी नहीं है पानी के साथ रिएक्ट करने की. Means there is no tendency to react with the water. Means there is no hydrolysis. And as there is no hydrolysis, whatever the pH of this salt is recorded, that is equal to 7. आया समझ में? इसलिए ये NaCl जो है, it is showing pH equal to 7, means neutral salt. But if we'll talk about strong acid and weak base, strong acid I have taken sulfuric acid, and weak base I have taken copper hydroxide. So obviously जब acid react करता है base के साथ, it will form salt and water. What I want to prove over here, this copper sulfate is slightly acidic in nature. So what I have done, I have taken this copper sulfate और उसको पानी में डाल दिया. What you will get? Cu2+ and SO4 2-. अब इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग किसका था? सल्फेट ना. सल्फेट इज ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, इट विल नेवर रिएक्ट विद द वाटर. ठीक है? देयर इज नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विद द वाटर, मींस इट विल नॉट अंडरगो इनटू द हाइड्रोलिसिस. बराबर है? तो इसका पत्ता तो कट हो गया. बट वी हैव कॉपर. कॉपर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि ऑब्टेन कहां से हुआ था? ये कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ. So it will react with the water, undergoes into the hydrolysis and forms copper hydroxide and hydronium ion. Again, this equation is not balanced. मैंने सिर्फ लिख दिया है. Okay. अब ये जो hydronium ion है, because of this hydronium ion, we are getting this pH is slightly lesser than 7. क्योंकि hydronium is nothing but presence of H+ ions, which is making your salt slightly acidic in nature. और इसमें से ये जो सोल्यूशन मिलेगा, that will be turbid in nature. So in order to dissolve this turbidity, ये आ गया ना अभी copper hydroxide. Because of this, we have to add little quantity of sulfuric acid so that you will get a clear solution. समझा? किसका turbidity मिलता है? copper hydroxide का turbidity मिलता है, क्योंकि देखो सोल्यूशन में ये तो है और इसके साथ ये भी है ना.
तो इसको निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू ऐड मोर अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड so that whatever the turbidity of copper hydroxide has been formed, that can be removed very easily. अभी समझा? Any questions till now in these two types? हम लोग ये प्रूव कर रहे हैं कि क्यों pH slightly lesser than 7 है, क्यों pH slightly higher than 7 है. Is it clear? Should I proceed? बहुत Yes, easy है. ma'am. Okay. अभी नेक्स्ट वाला ना तुम लोग मुझे बताना, ठीक है? रुको एक सेकंड में पेज टर्न करती हूँ. Now we will go for salt of third one, weak acid and strong base. अभी suppose weak acid मैंने ले लिया acetic acid CH3COOH और strong base क्या ले लें, चलो NaOH ले लेते हैं आपके टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल, ठीक है? अभी ये कौन सा सॉल्ट बनाएगा, it will form CH3COONA plus H2O. मुझे क्या प्रूव करना है, ये जो सॉल्ट बना है इट इज शोइंग pH मोर देन 7, ठीक है? आप लोग ही मुझे सिखाओगे कि कैसे आ रहा है, करेक्ट? चलो मैं क्या करूं, आई विल टेक दिस सॉल्ट, चलो ले लिया CH3COONA, इसको पानी में डाल दिया aqueous. What it will form, CH3COO minus plus Na plus. This is also aqueous. This is also aqueous. अब मुझे बताओ कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर पार्ट कहाँ से आया, NaOH वाला स्ट्रॉन्गर था ना? तो हाँ ये स्ट्रॉन्गर है, बराबर. तो दिस पार्ट react with water or not? Will it react with the water? No. No. Very good, very correct. क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग रहता है बच्चों वो कभी भी पानी के साथ नहीं रिएक्ट करेगा. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैक्सिमम आयन बन गया ना, अभी क्या टूटेगा. So it will not having any tendency to react with water, correct? अब बेचारा बच्चा कौन, acetate ion. So what this acetate ion will do, it is reacting with the water. समझ रहा है कि नहीं? This is reacting with the water and form CH3COH plus OH minus. देखो अब मेरे सोल्यूशन में क्या आ गया, OH minus. और इस OH minus की वजह से मेरा जो pH है it is slightly greater than 7. That is why my salt is slightly basic in nature. आया समझ में अभी? Understood everyone? Yes, ma'am. हाँ, किसको नहीं समझा पूछो, वापस से देखो, रिपीट करती हूँ. What I am saying, I am having over here salt of weak acid. This is acetic acid, weak acid. This is strong base, correct? चलो अभी salt बना दिया. मुझे क्या प्रूव करना है कि my salt is slightly basic in nature. So what I will do, I'll just put it in the water. अब इसमें से देखने का क्या, ये तो strong से मिला है और ये तो weak से मिला है. तो जो strong वाला होता है वो कभी भी water के साथ hydrolysis नहीं करता, क्योंकि maximum number of ions have been broken down because it is acting as a strong electrolyte. तो क्या बच गया अभी, एसिटेट. देखो ना वाटर था ना HOH, तो एक H किसके साथ चला गया, एसिटेट के साथ. क्या बना है, एसिटिक एसिड. और दूसरा क्या है, OH माइनस. अब आप बोलोगे मिस ये एसिड है, ये बेस है, न्यूट्रल होना चाहिए. नहीं होगा न्यूट्रल, क्योंकि ये वीक एसिड है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है. तो मेरा जो सोल्यूशन है क्या बन जाएगा, स्लाइटली बेसिक इन नेचर. तो अगर मैं यहाँ पर रेड लिटमस पेपर डालती हूँ तो माय लिटमस पेपर विल बिकम ब्लू इन नेचर. क्लियर these 3 parts? चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन. अभी तुम लोग मुझे बताना, लास्ट वाला बच गया. लास्ट वाला कौन सा पार्ट था, वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक है? अभी क्या करेंगे, चलो वीक एसिड का एग्जांपल ले लेती हूँ. CH3COH प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस ले लेते हैं, ठीक है? तो इट विल फॉर्म CH3COO NH4 प्लस H2O, करेक्ट? चलो अभी यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पर हम लोग को क्या प्रूव करना है कि pH इज इक्वल टू 7, क्योंकि ये भी वीक है और ये भी वीक है. तो अभी क्या करेंगे, ये सॉल्ट लेंगे, इसको पानी में डाल देंगे, है ना? तो इट इज CH3COO माइनस प्लस NH4 प्लस. समझा, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है? अब ये क्या था, वीक एसिड है, ये क्या है, वीक बेस है.
करेक्ट. सो हियर their relative strength, actually क्या होता है, ये भी नहीं रिएक्ट करता है पानी के साथ. They are saying they are making themselves neutral in nature because both of them are weak in nature. तो इनका क्या निकालते हैं पता है इस केस में, Ka और Kb निकालते. Kb, my solution is acidic in nature. If Kb is lesser, if Kb is greater than Ka, my solution is basic in, and when Ka is equal to Kb, my solution is neutral in nature. इस केस में क्या हो जाता है, I will get Ka equal to Kb, and that is why my solution is neutral in nature. सबको समझा अच्छे से? Understood every, these four solutions are 7 in the case of strong acid, strong base, weak acid, weak base, and why it is acidic and basic in the case of strong acids or strong bases. ठीक है. अभी है ना क्या किया पता है क्या, आपके टेक्स्ट बुक में है ना ये जो टॉपिक है, ये वाला जो मैंने अभी बताया, इसको लेकर ना बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे हुए हैं, जबकि वो कुछ है नहीं, खाली दे हैव प्रूव्ड इट. तो सिर्फ इतना याद रखना, व्हेन द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड is greater than base, it will be obviously acidic in nature. उसका वहाँ पे खाली एग्जांपल दिया, बाकी कुछ है नहीं. ठीक है. Kb greater than Ka, मतलब dissociation constant of base is greater than dissociation constant of acid. So because of that, it is basic in nature. उन दोनों equal हो गया तो it is neutral in nature. समझा? तो अभी मुझे बताओ फर्स्ट केस जो लिया था, इधर क्या, रुको इधर लिखती हूँ. फर्स्ट केस स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. हाँ ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, रुक जाओ पहले. अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा, कि A इक्वल टू के भी रहेगा ना, यस और नो. एंड सिमिलरली वीक एसिड एंड वीक बेस में भी क्या होगा, कि A इक्वल टू के बी. अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग वीक बेस में क्या रहेगा, कि A will be greater than KB रहेगा. Very good, perfect. Okay, and strong base and weak acid में क्या होएगा बोलो, KB is greater than KB will K. be greater than K. बस खत्म, इतना ही था. और उसका उन लोगों ने वापस से सेम एग्जांपल दिया है जो मैंने अभी ऊपर लिया ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाला, अमोनियम एसिटेट वाला सेम एग्जांपल है. सो आई एम नॉट डूइंग दैट पार्ट. ठीक है, चलेगा. तुम लोग घर पे बैठ के आराम से पढ़ लो. इज इट ओके? इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 55. वही चीज वापस से रिपीट की है जो मैंने बोला ना, खाली उनके के बी वैल्यू के साथ उसको कंपेयर किया. तो यू कैन रीड इट. इज इट ओके? एनी Yes, क्वेश्चंस इन ma'am. दिस? Yes, ma'am. पक्का? हाँ, ओके. शुड आई प्रोसीड? ये समझ में आया कैसे अपना सॉल्ट एसिडिक और बेसिक हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस साइंस ओवर हियर, और पहले वाले केस में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H3O प्लस. ऋषि तुमको ये लेना था ना, स्क्रीनशॉट लेना था ना, ले लो. पर मैंने बहुत ऐसे खिचड़ी करके लिखा है, क्या समझेगा क्या पता. ले लो चाहिए तो. लिया? ओके, पीछे वाला पेज भी देखिए तो ले लो. ठीक है, ओके. चलो. अब मैं आपको एक नया पार्ट पढ़ाऊंगी आज, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पार्ट है, which is called as buffer solution. ठीक है, we will study here now buffer solution. आपने कभी सुना है buffer solutions का नाम लैब में टाइट्रेशन करने के टाइम पर? शायद नहीं होगा तुम लोगों को. I don't remember only also. लैब Okay. में मिस एक बार सुना था. ओके, ठीक है. अभी देखो हाँ, होता क्या है यहाँ पर, ध्यान दो. ब्योरेट और कॉनिकल क्लासेस सभी ने देखा होगा. Suppose I have strong base over here and suppose I have strong acid over here. ठीक है. अब जब मैं बेस को एसिड में डालूंगी तो क्या होगा, अपना नॉर्मल रिएक्शन. They both will react with each other and forms my pH equal to neutral. मतलब 7 हो जाएगा और रिएक्शन खत्म हो जाएगा. ठीक है, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं चाहिए. मुझे चाहिए कि मेरा जो सोल्यूशन था वो एसिडिक ही रहे. मुझे नहीं इसको चेंज करना है. आई वॉन्ट टू कीप दिस एसिडिक ओनली, और खाली थोड़ा सा चेंजेस हो. तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, ये बेस ऐड करने के पहले हम लोग बफर सोल्यूशन ऐड करते हैं. ठीक है, तो व्हाट दिस बफर विल डू,
it will resist drastic change in pH when strong acid or strong base are added to it. ठीक है, when strong acid or strong base are added to solution. ठीक है, बट थोड़ा स्मॉल अमाउंट ही रहना चाहिए. समझा? अभी धाड़ करके मैंने एक साथ स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया तो बफर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है कि इसको संभाल पाए. समझा? तो वो क्या करेगा, इसका पीएच चेंज कर देगा. लेकिन अगर मैंने धीरे धीरे थोड़ा ऐड किया तो बफर की क्या टेंडेंसी होती है, वो इसके पीएच को बचा लेता है. अगर मुझे इसको एसिडिक रखना है तो बफर डाल के मैं इसको एसिडिक ही रख सकती हूँ. समझा? अभी दूसरा केस लेते हैं. दूसरे केस में मैं क्या करूंगी, आई विल टेक स्ट्रॉन्ग एसिड और यहाँ पे मैंने ले लिया सपोज बेस. So when I'm going to add acid into the base, same reaction होगा. Acid will react with base to form salt and water. बराबर? Again pH of my salt will be suppose acidic हो गया. अभी मैंने suppose यहाँ पे strong acid लिया और यहाँ पे weak base लिया. तो मेरा जो salt है वो change हो जाएगा ना. मुझे नहीं change करना है. I want to keep it as it is. So what I will do? I will add buffer. समझ रहे हो buffer का role क्या है? It will resist the drastic change in the pH. But when upon addition of small amount of strong acid or strong base, अगर मैंने एकदम पूरा ब्योरेट धड़ाधड़ खाली कर दिया तो क्या होगा, ये बफर बेचारा बहुत वीक है. It is not able to resist the pH. It is not able to stop the pH of the solution. तो बफर का काम क्या है कि मेरा जो सोल्यूशन है उसको मुझे एसिडिक ही रखना है या बेसिक ही रखना है. मुझे उसका पीएच चेंज नहीं करवाना है. I don't want to make it neutral. I don't want to make it acidic. I don't want to make it basic. जैसा है वैसा ही रखना है. So in that case, before adding your biorate solution, we will add buffer. तो buffer का role क्या है? It will resist drastic change in the pH upon addition of small amount of strong acid and strong base. Very important word is small amount. आपने 2 लीटर डाल दिया तो बफर पूरा बर्बाद हो जाएगा. बफर नहीं उसको रोक सकता है. ठीक है, तो आप थोड़ा थोड़ा ऐड करोगे तो बफर थोड़ा सा मैनेज कर लेता है कि हाँ भाई चलो ठीक है, थोड़ा सा ऐड किया तो आई कैन रेजिस्ट द पीएच ऑफ द सोल्यूशन. बफर का मीनिंग समझ आया? अभी मैं उसका मैकेनिज्म समझाऊंगी ना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा. बफर का मीनिंग समझा? इन शॉर्ट बफर का काम क्या है? किसी भी तरह से पीएच को चेंज होने से रेजिस्ट. यस यस करेक्ट. अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, अभी देखो वी विल स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ बफर और फिर मैं उसका मैकेनिज्म समझाती हूँ. ठीक है, वी विल स्टडी नाउ टाइप्स ऑफ बफर solution. There are 2 types. First is called as acidic buffer. Another one is called as basic buffer. Correct? What is acidic buffer? याद रखो, देखो it is a salt of, ठीक है, it is a salt of weak acid plus, नहीं सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने. It is a salt, it is a, हाँ बराबर था. What is a buffer solution? Acidic buffer, a solution containing weak acid. ठीक है, acid weak रहेगा but salt of strong base. ध्यान देना, acidic buffer में acid weak लेने का, लेकिन उसका जो salt रहेगा वो strong base का रहेगा. I will give you the example for that. Weak acid क्या लिया? CH3COOH. But salt of strong base मतलब CH3COONA. अभी याद आ गया, Na किधर से आएगा? Na किधर से आएगा बोलो? NaOH से आया ना? आ रही है बात समझ में? तो ये क्या बन गया? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस. ये क्या बन गया? वीक एसिड. समझा ये मैंने क्या बोला? वीक एसिड है और उसका हम लोग को स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बनाने का है. तो मैंने क्या ऐड किया? NaOH है ना, तो NaOH से क्या बनेगा? ये सोडियम एसिटेट बनेगा. ठीक है, अभी बेसिक बफर में क्या होगा? It will give you weak base plus correct salt of strong acid. अभी weak base सपोज मैंने ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड और इसके साथ में ले रही हूँ अमोनियम क्लोराइड. बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा एसिड यूज किया होगा इधर पे जो स्ट्रॉन्ग बेस बन गया? बफर सॉल्यूशन में बैलेंस होता है ना? बैलेंस होता है मतलब क्या बोल रहे हो?
समझा नहीं ऋषि मुझे आपका क्वेश्चन। क्या बैलेंस करना है आपको, मतलब क्या बैलेंस करना है? इक्वेशन बैलेंस करना है, मॉलिक्यूल्स बैलेंस करना है, पीएच बैलेंस करना है, क्या बैलेंस करना है? मुझे क्वेश्चन नहीं समझा आपका। अनम्यूट होके बोलो। ऋषि आर यू देयर? अच्छा ठीक है, टाइप करो चलो, तब तक मैं बता दूं। ये यहाँ पे कौन सा एसिड यूज किया बच्चों? HCl ना? दोनों भी सेम क्वांटिटी में होते हैं, सेम क्वांटिटी में नहीं होते हैं। हाँ ऐसे ले सकते हो, डिपेंड्स के कौन सा आप बना रहे हो। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन दी वॉल्यूम आल्सो, कितना यू वांट टू प्रिपेयर। ठीक है, चलो ये समझा अभी। टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। फर्स्ट is called as acidic buffer, another one is called as basic buffer. What is acidic buffer? It is a mixture or a solution of weak acid plus salt of strong base. देखो ये इतना सेम ही है, खाली इसका बेस स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, वापस यहाँ पे क्या आएगा? वीक बेस एंड द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ तक सेम है, खाली इसका जो सॉल्ट है इट इज योर स्ट्रॉन्गर एसिड, क्योंकि ये HCl से लिया गया था। ठीक है, अब देखो रिएक्शन कैसे होता है। ये तुम लोग को मैकेनिज्म बहुत डिटेल में नहीं है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली में इसका रोल क्या है। देखो अभी कैसे करने का। आई विल टेक ओवर योर एसिड, मतलब H+ आयंस, और यहाँ पर मैंने ले लिया सपोज बेस, मतलब OH- आयंस। अभी कौन सा भी रहने दो, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, व्हाटएवर इट इज। अभी ध्यान देना, when I'm going to add acid to the base, it will form salt and water. मेरा ये जो pH है वो चेंज हो जाएगा। I don't want to change. So what I will do now, suppose I am adding over here acidic buffer. Acidic buffer ऐड किया, मतलब क्या ऐड किया? CH3COOH plus CH3COO चलो एसिडिक बफर ऐड कर दिया। अभी बफर क्या करेगा? ये जो बेस है इसको कवर कर देगा। ठीक है, अब इसमें देखो, हाँ इसमें CH3COO माइनस एंड Na प्लस। तो ये जो है ये एसिडिक पार्ट है कि नहीं, और ये जो है वो बेसिक पार्ट है कि नहीं, इतना समझा? बफर को अगर मैंने ब्रेक कर दिया तो ये एसिडिक पार्ट हो गया और ये मेरा क्या हो गया? बेसिक पार्ट। बराबर। अब देखो हाँ, ऊपर से कौन आ रहा है? एसिड आ रहा है। बराबर, ऊपर से कौन आ रहा है? एसिड आ रहा है। तो ये एसिड इस बेस के साथ रिएक्ट करने की बजाय इस बेस के साथ रिएक्ट करेगा। आ रही है बात समझ में? ये जो एसिड है इस बेस के साथ रिएक्ट करने की बजाय इस बेस के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, और क्या करता है पता है? इसको यहाँ तक पहुंचने को ही नहीं देता, और इस तरह से वो क्या करता है? उसका पीएच रेजिस्ट कर देता है। समझा क्या? एकदम सिंपल सा मैकेनिज्म यहाँ है। पर हमारा बफर Na है ना? यस, बफर Na है दोनों, ये पूरा सोल्यूशन ये बफर है बच्चा। समझा क्या? ये देखिए जो है ना CH3CO माइनस, और इसको ब्रेक करेगा ना तो ये क्या हो गया? दिस इज योर एसिडिक पार्ट, दिस इज योर बेसिक पार्ट ना। समझा? ये एसिडिक पार्ट है और ये बेसिक पार्ट है। बराबर। तो अब जब मैं एसिड ऐड करूंगी तो ये एसिड इस बेस के साथ रिएक्ट करने के बजाय किसके साथ रिएक्ट करेगा? बफर के बेस के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये यहाँ तक पहुंचता ही नहीं है। आ रही है बात समझ में? और इस तरह से क्या होता है? मेरे सोल्यूशन का पीएच रेजिस्ट हो जाता है। अब उसको उल्टा कर दो। अब मैंने बेस को मीन्स ऊपर ये लिखा। वीक बेस है ना? यस यस, कौन सा भी बेस ले लो वो बफर के बेस के साथ रिएक्ट कर जाएगा, वो नीचे तक जाएगा ही नहीं। अभी देख मैं वापस बताती हूँ, ये हो गया एसिड। बराबर है, मुझे इसका पीएच नहीं चेंज करना है, तो मैंने क्या ऐड किया? अभी बफर ऐड किया, कर दिया बफर ऐड। अब ये एसिडिक पार्ट है, ये बेसिक पार्ट है। अब जब मैं बेस डाल रही हूँ तो ये बेस इस एसिड के साथ रिएक्ट करने के बजाय किसके साथ रिएक्ट करेगा? बफर के एसिडिक पार्ट के साथ रिएक्ट करेगा, है ना? तो यहाँ तक पहुंचा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका पीएच मेंटेन हो जाता है। आया समझ में? दिस इज कॉल्ड एज मैकेनिज्म ऑफ बफर सॉल्यूशन। अभी उल्टा बताती हूँ, दूसरा। अभी सेम लिया मैंने, बट अभी मैं क्या ऐड करूंगी? बेसिक बफर ऐड करती हूँ। NH4Cl प्लस NH4OH। अब देखो ये बेसिक पार्ट है, ये एसिडिक पार्ट है। बराबर, दिस इज बेसिक पार्ट, दिस इज एसिडिक पार्ट। अब मुझे नहीं चेंज करना है बेस, तो ये जो मेरा एसिड है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? ये वाले बेस के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं।
हो गया ना पीएच मेंटेन, क्योंकि अगर वो इसके साथ रिएक्ट करता तो सोल्यूशन का पीएच चेंज हो जाता। तो बफर क्या करता है, सुरक्षा कवच बना देता है इसके ऊपर, तो वो यहाँ तक पहुंचता ही नहीं। अगर एसिड ऐड कर रहे हो तो बफर के बेस के साथ रिएक्ट कर देगा, वहां पे मामला सुलझ गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, आई विल यूज ओवर योर NH4OH plus NH4Cl. So this base, instead of reacting with this acid, it will react with this acid. आ रही है बात समझ में? तो यहाँ तक वो पहुंचा ही नहीं, and this is how it is maintaining the pH of your solution. लेकिन अगर मैंने ऊपर से बहुत सारा OH ऐड कर दिया ना, तो ये बफर कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये किसी भी हालत में ये स्ट्रॉन्गर है, एसिड मेरा स्ट्रॉन्गर है, बेस मेरा स्ट्रॉन्गर है, तो उस हालत में हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऐड कर रहे हो ड्रॉप वाइज, तो बफर आपका मैनेज कर लेगा। लेकिन आपने एकदम धड़ाधड़ छोड़ दिया, 50 लीटर या 50 ml एक साथ छोड़ दिया, 1-2 ml तक ठीक है, ठीक है, 10 ml तक भी ठीक है, लेकिन 100 ml 200 ml एक साथ डाल दिया तो बफर का जो ताकत है ना, वो इसके सामने नहीं टिकता है, एंड बफर कैन नॉट रेसिस्ट। दिस इज कॉल्ड एज बफर मैकेनिज्म। सबको समझा? मिस एक डाउट, हाँ बोलो ना। मिस मतलब हमारा बफर हम लोग को ऐसा चाहिए ना जो नीचे मतलब ये नीचे हमारा सब्सटेंस है उसके साथ वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए ना। करेक्ट, मतलब अभी बराबर, हमारा नीचे बेस है तो वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए, वो सिर्फ एसिड नहीं के साथ करेगा। रिएक्ट करना चाहिए। यस, परफेक्ट, बिल्कुल सही, एकदम सही बोला। इट विल नॉट रिएक्ट ओनली, सिर्फ जाता है और इसको कवर कर देता है, बस उसका कुछ काम ही नहीं है। अंडरस्टूड समझा। एवरीवन? हाँ, ठीक है। ये मैकेनिज्म आप लोग को बहुत डिटेल में नहीं दिया है, पर मैंने थोड़ा समझा दिया कि एक्चुअली होता कैसे है। क्लियर एवरीवन? तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, देखो, बफर, व्हाट इज बफर, डेफिनेशन ऑफ बफर क्या है, अ सॉल्यूशन which resist the drastic change in the pH upon addition of small amount of strong acid or strong base. ठीक है, देखो क्या लिखा है, small amount is important. There are two types of buffer solution. First is called as acidic buffer, another one is called as basic buffer. Acidic buffer क्या होता है, weak acid and the salt of strong base। याद ही कर लो, तुम लोग के सिलेबस में ना यही एक बफर है, एसिडिक बफर का ये एक ही एग्जांपल है, और बेसिक बफर का ये एक ही एग्जांपल है। सो इट इज अ वीक बेस एंड द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। समझा? फिर मैकेनिज्म समझ में आ गया कि अगर मैंने ब्योरेट में एसिड लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड, और मेरे कॉनिकल फ्लास्क में बेस है, तो मैंने क्या ऐड कर दिया, अभी बफर ऐड कर दिया, तो मैं जो एसिड ऐड करूंगी ना, वो ये बेस के साथ नहीं रिएक्ट करेगा, जो बफर का बेस है उसके साथ रिएक्ट करेगा, वेदर इट इज एसिडिक बफर और बेसिक बफर। क्लियर बच्चों? आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। अगर उसका रिएक्शन के साथ भी चाहिए तो रिएक्शन के साथ भी बता सकते हैं। देखो ना, ये जो पार्ट था एसिडिक पार्ट था ना, किधर गया, किधर गया, ये रहा एसिडिक पार्ट था, जैसे मैंने बोला, तो H प्लस इसके साथ रिएक्ट करेगा, व्हाट इट विल फॉर्म, इट विल फॉर्म दैट एसिडिक सॉल्यूशन। सो वो उसका पीएच रेजिस्ट कर देता है। समझा सबको? मैकेनिज्म सबको समझ आ गया? अच्छा, अभी है ना एक इक्वेशन दिया हुआ है, हाउ टू कैलकुलेट दी pH of your buffer solution। ठीक है, pH of acidic buffer is given by equation। एक्चुअली लास्ट ईयर तक इसका एक प्रॉपर डेरिवेशन था, अभी तुम लोगों के सिलेबस में से वो डेरिवेशन निकाल दिया, तो खाली तुम लोगों को फॉर्मूला याद रखना है। तो क्या है पता है, pH of acidic buffer कैसे निकालेंगे, pH is equals to pKa plus log to the base 10 concentration of salt upon concentration of acid। आप पूछोगे मेरे से pKa क्या है, pH क्या होता है, what is pH, कल ही पढ़ाया था, what is pH, नेगेटिव log to the base 10 concentration of H plus ना, तो pKa क्या हो जाएगा, pKa हो जाएगा नेगेटिव log to the base 10 Ka। समझा? P का मतलब क्या होता है, पोटेंस ऑफ दिस। अच्छा, अब मुझे बताओ, मैंने क्या बोला था कि अगर Ka ज्यादा है तो एसिड स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो pKa ज्यादा है तो एसिड स्ट्रॉन्ग रहेगा कि वीक रहेगा, मैंने लास्ट टाइम बताया था शायद से, ये बताया तुम लोग को ये कि नहीं, बोला है क्या ये तुम लोग को?
ऑर्गेनिक में किया रहेगा तुम लोगों ने। हाँ करेक्ट, के ए ग्रेटर है, क्योंकि कल ही पढ़ा ना के ए। अभी पी के क्या है, पी के इज नथिंग बट नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 के, मतलब देखो नेगेटिव लॉग है, तो पी के अगर ज्यादा होगा तो मेरा एसिड वीक हो जाएगा, बट के ज्यादा होगा तो मेरा एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से दे विल आस्क यू क्वेश्चंस आल्सो। हाँ बताया था ना, वही करेक्ट करेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया पीएच वाला। और पीओएच का कैसे लिखेंगे डेफिनेशन, आई मीन पीएच ऑफ बफर, पीओएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। एक मिनट, पीओएच ऑफ बफर सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, POH is equals to, अभी क्या लिखूं इधर, PKB plus log to the base 10 concentration of salt upon concentration of base। समझा? इस इक्वेशन को बोलते हैं, जो दोनों इक्वेशन अभी हम लोगों ने लिखा ना, what is the name of that equation? It is called as Henderson Hazel-Balch इक्वेशन। इसके ऊपर भी कभी कभार न्यूमेरिकल्स आते हैं। समझा? पीएच क्या हो जाएगा, पीकेए प्लस लॉग टू द बेस 10 सॉल्ट अपॉन एसिड, और पीओएच क्या हो जाएगा, पीकेबी प्लस लॉग टू द बेस 10 सॉल्ट अपॉन बेस। बस इतना ही है। दैट इज कॉल्ड एज हेंडरसन्स हेज़ल-बाल्च इक्वेशन। समझा अच्छे से? आई होप इट इज वेरी क्लियर। देखो यहाँ पे बफर एक्शन भी दिया हुआ है, चाहिए तो मैं पढ़ा देती हूँ बफर एक्शन। बफर एक्शन मतलब वही जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। ठीक है, व्हाट इज बफर एक्शन? देखो पहले हम लोग लेंगे एसिडिक बफर, CH3COOH प्लस CH3COONA। तो ये कौन सा पार्ट है, एसिडिक पार्ट, और इसमें से ये कौन सा पार्ट है, CH3CO माइनस, ये हो गया आपका बेसिक पार्ट। बराबर। अभी ब्योरेट में क्या लिया मैंने, H प्लस आयंस, कॉनिकल फ्लास्क में क्या लिया मैंने, OH माइनस आयंस। बराबर। अभी मुझे नहीं चाहिए कि चेंज हो, तो मैंने अभी एसिडिक बफर ऐड किया। अब मुझे बताओ कि ये H प्लस एसिडिक के साथ रिएक्ट करेगा कि बेस के साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ रिएक्ट करेगा ना। तो देखो कैसे रिएक्ट करेगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, क्या बना, एसिटिक एसिड ही बन गया ना। और ये पहले से ही था, तो क्या चेंज हुआ, कुछ चेंज ही नहीं हुआ। समझा? मतलब ओवरऑल क्या बना सोल्यूशन के अंदर, एसिटिक एसिड। देखो पहले से ही था और यहाँ से ऐड करने के बाद भी वही बन गया, तो चेंज ही नहीं हुआ ना, पीएच यहाँ तक पहुंचा ही नहीं, ऊपर ही उन लोगों ने अपना मामला तमाम कर दिया। अब उल्टा कर दो, ऊपर OH माइनस ले लो और नीचे H प्लस ले लो। अब ये बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा, इन दोनों में से इसके साथ रिएक्ट करेगा। समझ रहे बात सबको? तो कैसे हो जाएगा इक्वेशन, CH3COOH plus OH minus, so what it will form, CH3CO minus plus H2O। देखो ये था और ये था, पूरे सोल्यूशन में ये बच गया, there is no reaction। आ रहा है कि नहीं समझ में? हेलो हेलो, Yes, ma'am. हाँ सबको समझ रहा है? नहीं समझ रहा तो प्लीज पूछो। हाँ कुछ भी ऐसे ऊपर से नहीं जाए, ऊपर से नहीं जाना चाहिए, अच्छे से समझ में आना चाहिए, धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके अभी देखो वैसे मिस एक बेसिक बार बफर। मतलब रिवाइज करो। हाँ हाँ यस यस, सी मैंने क्या बोला अभी, पहले एसिडिक बफर लेते हैं, CH3COOH प्लस CH3COONA। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एसिडिक पार्ट ऑफ द बफर। और अभी इसमें कैसे लेंगे पता है क्या, CH3COO माइनस लेंगे, दिस इज कॉल्ड एज बेसिक पार्ट ऑफ द बफर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, आई हैव टेकन अ ब्योरेट, इन दिस आई विल टेक एसिड, और मेरे कॉनिकल फ्लास्क में क्या है, बेस है। ठीक है, मुझे इसका पीएच चेंज नहीं करना है, तो ये जो मेरा एसिड है इन दोनों में से किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिडिक पार्ट के साथ के बेसिक पार्ट के साथ, बेसिक के साथ, है ना, ये वाले पार्ट के साथ रिएक्ट करेगा ना, ये वाला पार्ट। तो मेरा इक्वेशन क्या बन गया, CH3COO माइनस, बेसिक पार्ट लिखा, ऊपर से आ गया H प्लस, तो बना क्या, CH3COOH, ये बना, और ये ऑलरेडी था, तो सोल्यूशन में क्या बना, वीक एसिड विच इज एसिटिक एसिड, तो इसका पीएच चेंज ही नहीं होगा ना। अभी उल्टा कर दो, इधर OH माइनस ले लो, नीचे एसिड ले लो। ठीक है,
अब ये OH माइनस किसके साथ रिएक्ट करेगा? एसिड के साथ, करेक्ट और नॉट, है ना? अब कैसे रिएक्शन होगा देखो, CH3COOH, ठीक है, प्लस OH माइनस, क्या बनाएगा ये? CH3CO माइनस प्लस H2, देखो ये आ गया, और ये बेसिक पार्ट ऑलरेडी था, सो इट इज गिविंग यू बेसिक पार्ट। अंडरस्टूड एवरीवन? तो इस तरह से क्या होता है, इट इज रेजिस्टिंग द पीएच। एसिडिक बफर का समझा? अभी बेसिक बफर का बताती हूँ। वी हैव ओवर हियर NH4OH प्लस NH4Cl। मुझे बताओ ये कौन सा पार्ट है? दिस इज बेसिक पार्ट, और इसमें से NH4 प्लस इज योर एसिडिक पार्ट। इतना क्लियर? अब क्या करेंगे? टेक द ब्योरेट, इन दिस आई विल टेक एसिड, और नीचे है बेस। अब बताओ ये H प्लस इन दोनों में से किसके साथ रिएक्ट करेगा? बोलो। NH4OH। हेलो, बेस के साथ ना, इसके साथ रिएक्ट करेगा। यस इक्वेशन कैसे हो जाएगा? हाँ, NH4OH, देखो मैं वही इक्वेशन लिख रही, H प्लस, व्हाट इट विल फॉर्म? NH4 प्लस प्लस वाटर, यहाँ से OH और H गया, वाटर, देखो NH4 प्लस NH4 प्लस, कुछ चेंज हुआ नीचे? कुछ चेंज नहीं हुआ। अब उल्टा कर दो, ऊपर बेस ले लो, मतलब OH माइनस आयंस, और नीचे एसिड ले लो। अब बताओ ये OH माइनस किसके साथ रिएक्ट करेगा? एसिडिक पार्ट के साथ, मतलब इसके साथ, इसको तो नहीं देगा। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन? NH4 प्लस combines with OH minus to give you NH4OH। ये देखो आ गया बेस, सब जगह सेम। इस तरह से इसको बोलते हैं बफर एक्शन। नहीं समझा तो वापस पूछो। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड कैसे होता है बफर मैकेनिज्म, बफर एक्शन। पक्का समझ आया बच्चों? हेलो, पक्का क्लियर ना? ठीक है, चलो अभी पहले क्या लिखेंगे? हेडिंग लिखो बफर, ठीक है। बफर का डेफिनेशन, टू टाइप्स ऑफ बफर मैकेनिज्म, तुम लोग टेक्स्ट बुक में से ही पढ़ लो, अभी इतना लिखते मत बैठो, बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ है। मैकेनिज्म समझ में आ गया ना, बफर एक्शन क्या रहता है? और मैं पेज नंबर बता दूंगी, ऐसे लिखो, हेडिंग लिखो बफर, बफर सॉल्यूशन, डेफिनेशन। रेडी? कौन सा रिपीट करूं मेगा? एक मिनट ना, रुको, मेगा को कुछ डाउट है। बोलो मेगा, कौन सा पार्ट रिपीट करूं? हेलो, लास्ट का पार्ट, ओके। सी व्हाट आई सेड। अभी देखो तुम क्या इमेजिन कर रहे हो, इन योर ब्योरेट देयर इज एन एसिड, और नीचे क्या है? बेस है। अभी मैंने कौन सा बफर लिया? बेसिक बफर लिया। कौन सा भी बफर ले सकते हैं, अभी मैंने क्या लिया? बेसिक बफर। सो दिस एसिड विल रिएक्ट विद दिस बेसिक पार्ट, करेक्ट? बफर के एसिड के पास तो नहीं रिएक्ट करेगा, और यहाँ तक उसको पहुंचने ही नहीं देगा। सो दिस विल रिएक्ट विद द बेसिक पार्ट। कैसे हो गया? देखो ये बेसिक पार्ट था, इसको लिख दिया, एसिड H प्लस था, क्या मिलेगा मुझे? NH4 प्लस प्लस वाटर। ये देखो पूरे सोल्यूशन में सब क्या बच गया? NH4 प्लस। तो इसका pH चेंज हुआ ही नहीं, वैसे का वैसे ही रह गया। अब इसको सोल्यूशन को उल्टा कर दो, अभी ब्योरेट में बेस है और कॉनिकल फ्लास्क में एसिड है। तो अब मुझे बताओ कि ये जो बेस है वो इस एसिड के साथ तो नहीं रिएक्ट करेगा, कौन से एसिड के साथ रिएक्ट करेगा? बफर के एसिड के साथ। बफर का एसिड कौन सा है? NH4 प्लस। चलो NH4 प्लस लिख दिया, ब्योरेट से OH माइनस आ गया, दैट विल फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये ऑलरेडी था, तो क्या हो गया यहाँ पे? यहाँ तक पहुंचा ही नहीं। समझा? इस तरह से क्या होता है, मेरे सोल्यूशन का pH रेजिस्ट रहता है, इट विल नॉट चेंज। अभी समझा मेगा? ओके, और कुछ पूछना है, वापस से रिपीट करना है तो आई कैन रिपीट इट वंस अगेन, क्योंकि एक बहुत जल्दी समझ में नहीं आता है सब, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है ये। क्या याद रखने का, देखो मैं बताती हूँ, एक चीज ध्यान में कि जब आप एसिडिक बफर लेते हो ना, CH3COOH प्लस CH3COONA,
तो इसमें क्या याद रखने का कि ये जो पार्ट है ये एसिडिक ही रहेगा और इसका आधा पार्ट मतलब CH3CO माइनस ये बेसिक पार्ट है। ये ध्यान में रखोगे ना तो गड़बड़ नहीं होगा। फिर अगर आप बेसिक बफर ले रहे हो NH4OH प्लस NH4Cl तो ये जो है ये बेसिक रहेगा, लेकिन इसका आधा पार्ट मतलब NH4 प्लस जो है वो एसिडिक रहता है। समझा? तो अकॉर्डिंगली रिएक्शन कर देने का, हो गया। समझा अभी सबको अच्छे से? एनी डाउट इन द बफर सोल्यूशन, बफर एक्शन, बफर मैकेनिज्म? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बहुत जल्दी से सबको नहीं समझ में आता है, मुझे भी बहुत टाइम लगा था वो समझने में। ठीक है, चलो। वेलकम। अभी लिखो बफर सोल्यूशन, a solution which resists, a solution which resists drastic change in pH, a solution which resists drastic change in pH when a small amount of strong acid or strong base, a small amount of strong acid or strong base or water, strong acid or strong base or water is added to it, उसके बाद लिखो टाइप्स ऑफ, एक मिनट पेन खत्म हो गया, जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन। फर्स्ट वन लिखो, ऐसे ही लिखो, एसिडिक बफर, बेसिक बफर। लिखा? एसिडिक बफर क्या रहता है? वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल लिख दो, CH3COH प्लस CH3COONA। लिख के दूं क्या? ये एसिडिक है, दिस इज एसिडिक पार्ट, एंड इसमें से CH3COO माइनस इज बेसिक पार्ट। तो तुम लोग को याद रहेगा, भूलोगे नहीं। हुआ इतना लिख के बच्चों? हुआ बच्चों? ओके। बेसिक बफर में क्या लिखेंगे? वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल लिख दो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। तो ये कौन सा पार्ट है? बेसिक। एंड NH4 प्लस कौन सा पार्ट है? एसिडिक। समझा? बाकी तो कुछ उतना है नहीं। डन? चलो अभी आगे लिखो, हेंडरसन हेजल बाल्श इक्वेशन। हेंडरसन हेजल बाल्श इक्वेशन फॉर फर्स्ट वन acidic buffer,
ठीक है, क्या रहेगा? pH is equals to pK plus log to the base 10 concentration of salt upon acid. And second for basic buffer, देखो क्या आएगा? pOH is equals to pKb log to the base 10 salt upon base, oh sorry ये स्क्वायर ब्रैकेट है, salt upon base, ये ध्यान में रखना, भूलना नहीं। where नीचे लिखती हूँ, where pKa is equals to negative log to the base 10 Ka और pKb क्या है बच्चों? pKb is equals to negative log to the base 10 Kb। इसका लास्ट ईयर बहुत अच्छा ऐसे बड़ा सा डेरिवेशन था जो 4 मार्क्स के लिए आता था, अभी तुम लोगों के सिलेबस में से वो निकाल दिया। they have made it very very easy. I hope you all are not getting bored. सबको समझ रहे हैं अच्छे से? ओके, किसी को कुछ डाउट है पूछ सकते हैं, feel free to ask. मैम कौन सा भी बफर किसी भी डाल सकते हैं ना? क्या क्या? अभी एसिडिक बफर हम लोग कहीं पर भी यूज कर सकते हैं ना? ऐसा हाँ नहीं हाँ, है ना यस कि यस इसके यस, लिए एसिडिक नहीं नहीं, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तुम लोग जब भी इनऑर्गेनिक के प्रैक्टिकल्स करोगे ना, जब भी सॉल्ट बनाते हैं हम लोग, कभी कभार बताती हूँ क्या रहता है, कभी कभार हम लोग जैसे टाइट्रेशन करते हैं, बराबर? तो अब जब आप टाइट्रेशन कर रहे हो और आपके सोल्यूशन में सपोज कॉपर प्रेजेंट है या मैग्नीशियम प्रेजेंट है, तो ये सब जो कंपाउंड्स है ना, वो एक पर्टिकुलर पीएच पे ही अपना कलर देते हैं। अभी आपने कैसे किया रहेगा लैब में? यू मस्ट हैव डन एसिड बेस टाइट्रेशन, तो एसिड को बेस में डाला, फिनोल्फथालीन इंडिकेटर डाला, पिंक कलर आ गया, हो गया। किया है ना ऐसा वाला सिंपल एक्सपेरिमेंट, किया है कि नहीं? फिनोल्फथालीन डालते हैं, पिंक कलर आ जाता है ना, फिर मिथाइल रेस डालते हैं, ऑरेंज कलर आ जाता है, हो गया। लेकिन एक टाइट्रेशन होता है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है? सो इन दैट कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, हेलो हेलो, यस मैम बोलो। हाँ हाँ हाँ, तो जब भी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन होता है, तो इन दैट केस ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ना, वो एक पर्टिकुलर पीएच पे बनता है। तो मुझे अभी सोल्यूशन का पीएच मेंटेन करना पड़ेगा, तो मैं बाहर से ऐड करूंगी पीएच बफर हैविंग इक्वल टू 10। तो पीएच 10 है, तो ये एसिडिक बफर है कि बेसिक बफर है? बोलो, बेसिक बफर है ना। तो जब मैं बेसिक बफर डालूंगी तो मेरा सोल्यूशन मुझे कलर देगा, नहीं तो कलर नहीं देगा। फिर अगर सपोज मैं एक दूसरा कंपाउंड यूज करूँ, जैसे सपोज लिथियम हो गया, या फिर कुछ और कंपाउंड ले लेते हैं, सपोज जिंक ले लेते हैं, सपोज आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, तो इस केस में एक पर्टिकुलर पीएच पे ही मुझे कलर आएगा, क्योंकि मुझे पीएच मेंटेन करना पड़ेगा। जब तक पीएच मेंटेन नहीं होगा, कलर नहीं आएगा। तो सपोज आई हैव टू ऐड ओवर हियर बफर व्हिच इज हैविंग पीएच 2.3। अब बोलो ये एसिडिक बफर है कि बेसिक बफर है? एसिडिक बफर है, समझा? तो अकॉर्डिंग टू द कंपाउंड एंड द कॉम्प्लेक्सेस यू आर सपोज टू सिलेक्ट इट, समझा? तो जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स रहते हैं, कॉपर, ये सब, उन सब के लिए हम लोग को बेसिकली pH इक्वल टू 10 लगता है। ये कहाँ पे यूज होता है बताती हूँ मैं तुम लोग को, जो हार्ड वाटर जब भी हम लोग करते हैं ना टाइट्रेशन, बताती हूँ। ये हो गया लिख के, इज इट डन? डन, यस मैम। सबका हो गया? हाँ ठीक है, चलो अभी सबसे पहले बफर का प्रॉपर्टी बताती हूँ, फिर उसके एप्लीकेशंस बताती हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस बफर सॉल्यूशन? क्या क्या प्रॉपर्टी है इसकी? सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड कर रहे हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? इट विल रेजिस्ट द पीएच अपॉन एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस, बट स्मॉल अमाउंट। सेकेंड थिंग, आप अगर आपके सोल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हो, बहुत ज्यादा पानी डाला तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता बफर को, इट विल रिमेन सेम एंड इट कैन बी केप्ट फॉर अ
लॉन्गर टाइम के लिए रख सकते हो, लेकिन आपको बॉटल को बहुत अच्छे से बंद करके रखना पड़ेगा। कभी आप लोगों ने अमोनिया का स्मेल लिया, लिकर अमोनिया का स्मेल लैब में? कभी अमोनिया की बॉटल खोली है किसी ने? बहुत गंदा स्मेल आता है, पूरा नाक में चढ़ जाता है अमोनिया का, लिया है कभी स्मेल? तो दैट विल No, ma'am. आल्सो एक्ट एज अ बफर सोल्यूशन। अच्छा, तुम लोगों को रहेगा नहीं एक्चुअली प्रैक्टिकल्स में। तो जो लिकर अमोनिया होता है, इट हैज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर स्मेल, कि सीधे नाक में ही घुस जाता है। तो जनरली वी डोंट अलाउ द स्टूडेंट्स टू टच इट। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ कि कैसे होता है पीएच का एक्चुअली रोल कैसे होता है। देखो, अभी अपने पास है ना हार्ड वाटर है। हैव यू हर्ड अबाउट हार्ड वाटर? जो कुएं का हाँ पानी मिस, रहता जिसमें है। मिनरल्स होते हाँ हाँ, यस यस, करेक्ट। हम लोग जो पानी यूज करते हैं दैट इज अ सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर इन द सेंस नरम नहीं रहता है वो, उसमें मिनरल्स नहीं रहते हैं। हार्ड वाटर मतलब कुएं का पानी, जब आप गांव के साइड जाते हो दैट टाइम यू विल गेट द हार्ड वाटर, मीन्स इट इज वेरी वेरी स्लिपरी, और उससे ना कभी भी मैल बाहर नहीं निकलता। आप कपड़े धो देखो, काले काले हो जाएंगे, फिर हम लोग नहाते तो ऐसा लगता है नहाया नहीं, सोपी फीलिंग आता है। that is called as hard water. That hardness is due to the presence of calcium and magnesium ions. ठीक है, किसकी वजह से होता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की आयन की वजह से होता है। तो अब सपोज आप लोग है ना केमिस्ट हो, बहुत बड़े साइंटिस्ट हो, आप गांव में गए और गांव के लोगों ने आपको बुला रहे भाई जरा हार्ड वाटर हो रहा है, पानी नहीं हो रहा है, आप जरा बताओ कि कितना कैल्शियम और कितना मैग्नीशियम प्रेजेंट है। तो आप क्या करोगे? थोड़ा सा सैंपल लेके आओगे, ठीक है, उसको पिपेट आउट करोगे कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, सपोज 10 ml हार्ड वाटर पिपेट आउट कर दिया। उसमें क्या क्या था? कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों है। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगी? उसको टाइट्रेट करूंगी एक अलग रिएजेंट के साथ, जिसको बोलते हैं EDTA। जब आप लोग ये चैप्टर पढ़ोगे ना, क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तभी मैं पढ़ाऊंगी आपको। इसको बोलते हैं इथिलीन डायमंड टेट्रा एसिटिक एसिड। ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स है। तो जब ये EDTA इसके अंदर डालेंगे तो हम लोग एक इंडिकेटर यूज करते हैं विच इज कॉल्ड एज EBT। सिर्फ एसिड बेस्ड टाइट्रेशन नहीं होता है बच्चों, 4 तरह के टाइट्रेशन होते हैं। तो ये आता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में, जिसमें वो आपका कॉम्प्लेक्स बनाएगा। वो सब भूल जाओ कि क्या यूज करें, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या बता रही हूँ वो ध्यान में रखो। आई हैव Ca2+ एंड Mg2+। तो सबसे पहले Ca2+ को बाहर निकालना है। तो Ca2+ है ना pH 10 पे ही अपना असली कलर दिखाता है। अपना असली कलर जो है वाइन रेड कलर, इट विल शो यू ओनली एट द pH 10। समझा? अब मुझे इसका कलर बाहर लाने के लिए आई हैव टू ऐड pH 10, मतलब बेसिक बफर ऐड करना पड़ेगा। तो इस फ्लास्क में इतना ज्यादा अमोनिया और वो सब ऐड करते हैं ताकि एकदम स्ट्रॉन्ग स्मेल आए। फिर जब आप टाइट्रेशन करोगे ना तो आपको एक रीडिंग मिलेगा, सपोज 10 मिल गया 10 ml। तो किसका रीडिंग आया? कैल्शियम का। फिर क्या करते हैं? मैग्नीशियम को निकालने का है। अब मैग्नीशियम के लिए हो सकता है कि pH कम हो, सपोज 2 या 3 हो, तो हम लोग क्या करेंगे? वापस से उसके अंदर pH मेंटेन करने के लिए दूसरा बफर डालेंगे। इस तरह से उसको बाहर निकाला जाता है। तो पता चलता है कि अच्छा 10 ml में 5 ग्राम क्या था? कैल्शियम, और 10 ग्राम क्या था? मैग्नीशियम। फिर आप पूरे कुएं का मेजरमेंट लोगे, पूरे कुएं में सपोज 50 ml पानी था, तो 50 ml में कितना ग्राम आएगा कैल्शियम, कितना ग्राम आएगा मैग्नीशियम। और फिर क्या करते हैं? उतना उसके अंदर डिटर्जेंट डालते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ डिटर्जेंट? इट इज मेकिंग योर वाटर सॉफ्ट। समझा? इस तरह से ये यूज होता है पीएच का कॉन्सेप्ट। समझा अभी? ये तो एकदम बेसिक सी चीज मैंने बताई, और बहुत सारी जगहों पर यूज होता है। समझ अच्छे से? ठीक है, नाउ वी विल स्टडी हियर एप्लीकेशंस ऑफ बफर सॉल्यूशन। मुझे लगता है इतना तो हो ही जाएगा अपना। एप्लीकेशंस ऑफ बफर सॉल्यूशन, सबसे पहला एप्लीकेशन दिया हुआ है इन बायोकेमिकल सिस्टम। आप लोग को अगर 12th में से प्रोजेक्ट रहा ना तो हार्ड वाटर का प्रोजेक्ट कर सकते हो। यू कैन कलेक्ट 2-3 वाटर सैंपल्स, जैसे कि आपका लैब का वेस्ट वाटर हो गया, फिर घर का पानी हो गया जो नल में से आता है, टैप वाटर हो गया, फिर कोई ऐसे खाड़ी वाड़ी के पास जाने का, वहां का पानी लेके आने का। ठीक है, जैसे 3-4 सैंपल जमा किया और ये एक प्रोसीजर है, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। तो हर पानी में कितना हार्डनेस है, कितना कैल्शियम और मैग्नीशियम है, वो निकाल के रिजल्ट देने का हो गया प्रोजेक्ट। समझा? तो वगैरह में रहता है देखो प्रोजेक्ट, तो ये सब ले सकते हो। समुद्र का पानी लेने का कितना हार्डनेस है वो निकाला, या फिर एसिडिटी अल्कलिनिटी निकाल सकते हो कि आपका वो पानी कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है। तो इट इज वेरी इजी टू डू दैट।
समझा अभी ये? तो पहला क्या करेंगे हम लोग, बायोकेमिकल सिस्टम। अभी बायोकेमिकल मतलब क्या बोला है, पीएच ऑफ द ब्लड हैज टू बी मेंटेन, मैं ऐसे लिखती हूँ, ठीक है, पीएच ऑफ द ब्लड हैज टू बी मेंटेन बाय 7.36 टू 7.42, ठीक है, ड्यू टू कार्बोनेट बाइकार्बोनेट CH3 सॉरी HCO3 माइनस प्लस कार्बोनिक एसिड, ये अपने बॉडी में रहता है by maintaining this pH. A mere change of 0.2 unit also can cause the death in our body. देखो अगर 0.2 से भी अपने बॉडी का pH चेंज हो गया, we will die. The saline solution used for injection must contain the buffer solution and which is used to maintain the proper pH. समझा? तो आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में कार्बोनिक एसिड, बाइकार्बोनिक एसिड, तो कैसे भी करके अपने को हमारे ब्लड का जो pH है वो कितना मेंटेन करना है, 7.36 टू 7.42. अगर 0.2 का भी आया तो इंसान मर सकता है, इसलिए सलाइन और सिरिंज और सब लगाते हैं, ठीक है, ये हो गया पहला. सेकेंड एप्लीकेशन इज agricultural, ठीक है. The soil gets buffered due to the presence of salt. अभी soil में भी क्या क्या रहता है, कार्बोनेट सॉल्ट रहता है ना, CO3 माइनस, बाइकार्बोनेट सॉल्ट रहता है HCO3 माइनस, फॉस्फेट होता है PO4 माइनस और ऑर्गेनिक एसिड्स होता है, ठीक है. तो क्या करेंगे, सबका पीएच फाइंड आउट करके उन सबको आप न्यूट्रलाइज कर सकते हो. तो बफर्ड होती है अपनी सॉइल, कई बार हम लोग बफर्ड करते हैं जानबूझकर, ताकि वहां पर अच्छा से अनाज ग्रो हो सके, ठीक है. आफ्टर दैट इन द इंडस्ट्री, नेक्स्ट इज फॉर इंडस्ट्री, बफर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पेपर इंडस्ट्री, क्योंकि मैंने क्या बोला, कुछ कुछ कंपाउंड को आप तभी प्रेसिपिटेट कर सकते हो जब वो एक पर्टिकुलर पीएच पे होगा. पेपर इंडस्ट्री, डाई इंडस्ट्री जहाँ पे कलर्स किए जाते हैं, इंक इंडस्ट्री, क्योंकि जब आप पीएच मोर देन 7 लेते हो, that time it will always give you a colored compounds, ठीक है. So it is also used in the paint industries and drug industries, ठीक है. So buffer plays very very important role, ठीक है. Then next is in the medicine. कितना हो गया ये, पहला क्या था ब्लड, दूसरा क्या था एग्रीकल्चर, तीसरा क्या था इंडस्ट्री, चौथा क्या है मेडिसिन, ठीक है. अभी देखो मेडिसिन में कैसे बफर अपना रोल प्ले कर रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. पेनिसिलिन का नाम सुना है, पेनिसिलिन सुना है क्या, यस मैम, वैक्सीन. क्या है ये पेनिसिलिन, बोलो. एंटीबायोटिक में तो वैक्सीन का. करेक्ट, एंटीबायोटिक है, बराबर. तो ये जो है इट इज स्टेबलाइज्ड, क्योंकि पेनिसिलिन अनस्टेबल रहता है, तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सोडियम सिट्रेट बफर. देखो बफर का रोल आ गया ना इधर, ठीक है. उसके बाद दूसरा दिया हुआ है when citric acid is added to milk. citric acid मतलब नींबू, नींबू को दूध में डाला तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम सिट्रेट, क्योंकि दूध में क्या रहता है, मैग्नीसाइड, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. जनरली इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड. जब भी बहुत ज्यादा पेट में दर्द होता है, दैट टाइम इफ यू हैव हाफ कप ऑफ कोल्ड मिल्क, इट कैन क्योर योर एसिडिटी, नॉट द सीवियर एसिडिटी बट एकदम बेसिक एसिडिटी को वो क्योर कर सकता है, बराबर. तो जब सिट्रिक एसिड को इसमें डालेंगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम मिस वो सिट्रेट, बेसिक व्हिच इज, होता है ना. yes this is basic and citric acid is present in नींबू एंड ऑल. देखो ना हम लोग दही बनाने के लिए कभी कभार फटाफट चाहिए, पर क्या बोलते हैं, मक्खन छाछ, क्या मालूम क्या बोलते हैं उसको, मक्खन ही बोलते हैं ना, वो व्हाइट व्हाइट आता है उसको क्या बोलते हैं, फिर दूध में से छानते हैं उसको, समझ गया ना मैं क्या बोल छाछ. रही हूँ. हाँ, so that is called as citric acid. So what it will give you, it will give you a magnesium citrate which is also acting as a buffer. उसका pH मेंटेन होने के बाद ही वो PPT बाहर आता है, समझा. तो ये इस तरह से मेडिसिन में यूज होता है. और लास्ट यहाँ पे दिया हुआ है फिफ्थ एप्लीकेशन इज एनालिटिकल केमिस्ट्री. तो अभी मैंने आपको बताया एनालिटिकल केमिस्ट्री में जनरली वी आर यूजिंग बफर 8 to 10. Is my voice breaking? हेलो,
हेलो, No, ma'am. बराबर है ना? ऋषि, प्लीज चेक योर नेटवर्क. सो वी आर यूजिंग ओवर योर pH 8 to 10, क्योंकि एक ग्रुप होता है जब आप करोगे ना. आई एम ऑल्सो इन वाईफाई ऋषि. हो सकता है वाईफाई भी कभी कभार आ जा सकता है, चेक कर लो एक बार. ठीक है. सो इट इज मेंटेन टू जनरली वी आर यूजिंग ओवर ईयर 8 to 10. जब भी कुछ कुछ कंपाउंड्स होते हैं, जैसे आपने सपोज क्या किया, कैसे बताऊं मैं आपको. हाँ, सपोज आप कोई ओर्स लेके आए, या फिर कोई आप लेके आ गए मिनरल, या फिर आप लेके आ गए कोई तो अलॉयज. अभी सबका मीनिंग तो पता है ना सबको, ओर, मिनरल्स एंड अलॉयज. तो दीज आर कंटेनिंग मेटल्स, है ना. मुझे चेक करना है कि ये ओर में कितना मेटल प्रेजेंट है. सो व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड माय बफर. बफर क्या करेगा, इट विल रिएक्ट विद दैट पर्टिकुलर मेटल, गिव्स यू अ पर्टिकुलर कलर, और उस टाइट्रेशन से पता चल जाता है कि कितना अमाउंट प्रेजेंट है. तो जनरली वी आर यूजिंग 8 to 10 buffer, pH of buffer of pH 8 to 10 in that case. समझा अभी. इस तरह से हमारी लाइफ में बफर सोल्यूशन ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अभी यहाँ तक किसको क्या नहीं समझा है वो पूछ सकता है, क्योंकि अभी मैं न्यूमेरिकल्स लूंगी. नेक्स्ट एक लेक्चर पूरा न्यूमेरिकल लूंगी कल वाला. शाम को भी है ना तुम लोग का लेक्चर? आज क्या डे है? थर्सडे. हाँ, इवनिंग में भी है ना लेक्चर? Yes, ma'am. हाँ, तो इवनिंग में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे बहुत सारे. अभी भी मैं थोड़ा 15 मिनट है तो एक दो सम ले लेती हूँ. किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? क्योंकि सॉलिबिलिटी मैम ये इक्विलिब्रियम आई विल टेक. एनालिटिकल वाला रिपीट करो ना, मेरा कनेक्शन नहीं है. Analytical wala. Okay, okay. What I said in the analytical chemistry, suppose we have bought some ores, minerals, alloys, या फिर आप बहुत ऐसे अच्छे केमिस्ट हो, कहीं पे किसी ने खुदाई की, खान खोदी, तो आप लोगों को क्या मिल गया, कोई एक ऐसा मेटल मिल गया जिसको आपको चेक करना है कि कितना अमाउंट प्रेजेंट है. तो सबसे पहले उस मेटल का एनालिसिस करेंगे. एनालिसिस करने के बाद विल फाइंड आउट कि दिस विल गिव यू अ पीपीटी और अ टाइट्रेशन एट दिस पर्टिकुलर पीएच. तो जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, ग्रुप 3 एलिमेंट्स रहते हैं, जिसमें जनरली होते हैं एल्यूमिनियम, ठीक है, कॉपर, वो सब, जिंक, मैग्नीशियम. ठीक है. so in that case we are using buffer 8 to 10, so it will give you a proper reading with that. तो हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं, बेसिक बफर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड. और अगर ये नहीं रहेगा ना लैब में, तो एक सोल्यूशन रहता है जिसको बोलते हैं लिकर अमोनिया, which is very very stronger thing. It can also be used as a buffer solution. समझा. तो इस तरह से आप पता कर सकते हो कि कितना अमाउंट में मेटल था, ये और है कि नहीं, इसको अलॉय बोल सकते हैं कि नहीं. ठीक है. तो इस तरह से आप पता कर सकते हो. दैट इज यूज्ड इन द एनालिटिकल केमिस्ट्री. बफर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो यहाँ तक है ना, आपका एक पार्ट जो है चैप्टर का अच्छा खासा कंप्लीट हो गया है. अभी अपना क्या बचा है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, सॉलिबिलिटी इक्विलिब्रिया, रिलेशनशिप, कंडीशन, काफी बचा है, कॉमन आयन इफेक्ट. तो ये सब मैं बाद में लूंगी. अभी पहले जितना हम लोगों ने किया है ना एसिड वाला पार्ट, पीएच वाला पार्ट, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे. ठीक है. तो शाम को भी हम लोग पूरा टाइम कंप्लीटली न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करेंगे पूरा. तो अच्छे से प्रिपेयर्ड होके आना, नोटबुक, लॉग बुक और आपका पेन बुक सब लेके आना. एक मिनट, किसी ने कुछ तो लिखा है चैट में. थोड़ा थोड़ा कंटाला आ रहा है, कुछ तो करो ना, क्या करूँ ऋषिकेश. चलो ठीक है, एक न्यूमेरिकल करते हैं. रेडी चलेगा सब लोग को बच्चों? Yes, ma'am. चलो पहले सब फॉर्मूला तो याद करो. कौन सा फॉर्मूला सिखाया था, रुको. पहले सॉल्व एग्जाम्पल्स ही लेती हूँ, बाद में शाम को पीछे के ले लूंगी. ठीक है. एक लेक्चर अपना जाएगा उसमें. चलो लिखो क्वेश्चन. बोलू, एक हो जाएगा अभी फटाफट. A weak monobasic acid, read on the question. A weak monobasic acid is 0.05% 0.05% dissociated in 0.05% dissociated in 0.02 molar solution.
0.02 molar capital M solution. Calculate dissociation constant of the acid. Calculate dissociation constant of the acid. अभी देखो dissociation constant का formula क्या है? Alpha square into C. Yes or no? This is the formula for dissociation constant. मुझे C पता है. C कितना है? 0.02 मोलर. बट मुझे अल्फा पता नहीं है. करेक्ट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कैलकुलेट अल्फा. अल्फा का वैल्यू कैसे आएगा? ये देखो परसेंटेज दिया हुआ है. 0.05 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा ना. समझा? तो अब इसको क्या करेंगे? C 5 into 10 raised to minus 2 दो शिफ्ट किया डिवाइडेड बाय 10 raised to 2. अभी 10 raised to 2 ऊपर लेके जाओ. 5 into 10 raised to minus 2 और ऊपर जाके क्या बन गया? -2. मतलब 5 into 10 raised to minus 4. ये क्या आ गया? अल्फा. अभी निकाल सकते हैं के ए. बोलो. अल्फा स्क्वायर मतलब 5 into 10 raised to minus 4 का स्क्वायर. C is 0.02. करो. आएगा. सिंपल सा समय. अंडरस्टूड? यस और नो? प्लीज रिप्लाई. Have you Yes, all sir. understood? हाँ. समझा ना? के निकालने का अपने को. तो अल्फा नहीं पता था तो अल्फा परसेंटेज में दिया हुआ है, उसको इसमें कन्वर्ट किया. इसका स्क्वायर निकालो. कितना हो जाएगा? 5 5s are 25 into 10 raised to minus 8 into 2 into 10 raised to minus 2. 0.5 into 10 raised to minus. हाँ 5 25 50 हो गया into 10 raised to minus 10. बराबर ना? ये भी लिख सकते हो या फिर 5 into 10 raised to 1 into 10 raised to minus 10 मतलब 5 into 10 raised to minus 9. ये भी सही आंसर है. ये भी सही है. ये भी सही है. 50 into ये लिखा तो भी चलेगा. फर्स्ट सम समझा क्या सबको? Yes, ma'am. चलो एक और कर लो. अभी है 10 मिनट. हो गया सबका? सबका हो गया तो साथ में आगे बढ़ते हैं. Everyone done? Just give me a quick yes into the chat box if you're done with this sum. टेक्स्ट बुक का ही लिया है मैंने. सॉल्व्ड एग्जांपल. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूं. शाम को मैं टेक्स्ट के पीछे के ले लूंगी. ठीक है? ये भी करेंगे. सॉल्व्ड एग्जांपल भी करेंगे हम लोग. लॉग से सॉल्व करेंगे. लिखो. द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज. The dissociation constant of ammonium hydroxide is. अब मुझे बताओ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एसिड है कि बेस है? बोलो. अरे बोलो. अमोनियम हाइड्रोक्साइड एसिड है कि बेस है? Base. बराबर. ऋषि किधर से एसिड दिखा? OH माइनस आयन है ना उसके अंदर. बेस है ना? हाँ ठीक है. अभी बेस और डिसोसिएशन कांस्टेंट बोला मतलब के भी दिया है ना. समझा? चलो डिसोसिएशन. हाँ बराबर बराबर. yes you can leave Megha, no problem. The dissociation constant of ammonium hydroxide is 1.8 into 10 raised to minus 5. Welcome. Full stop. Calculate degree of dissociation. Calculate degree of dissociation in 0.01 molar solution. Calculate degree of dissociation in 0.01 molar solution. देखो क्या दिया हुआ है? Kb. ये क्या है? Concentration. अपने को क्या निकालना है? अल्फा. सेम फॉर्मूला आएगा ना? Ka is equals to alpha square into C.
So alpha square is equals to KA by C. पहले इतना सॉल्व करेंगे. चलो ठीक है, स्क्वायर रूट ले लूं क्या? KA by C. KA का वैल्यू कितना, इतना लिखो, इतना लिखो, फिर पेज टर्न करती हूँ, फिर तुम लोग सॉल्व करना आगे का. लिख लिए? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है, मतलब अल्फा. तो अभी क्या हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ना, तो अल्फा इज इक्वल्स टू KA by C. लिखा इतना? यस चलो अभी KA का वैल्यू कितना था देखो. KA का वैल्यू वाज गिवन एज स्क्वायर रूट. हाँ 1 पॉइंट कितना था, हाँ 1.8 इंटू 10⁻⁻5 और कंसंट्रेशन कितना दिया है अपने को 0.01. देखो आप इसको सिंप्लीफाई करो, इसको बनाती हूँ 1.8 इंटू 10⁻5 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10⁻². ये -2 जाके क्या बन जाएगा ना, तो क्या लिखेंगे इधर 1.8 इंटू 10⁻³ इतना समझा. तो मैं क्या करती हूँ पता है क्या, इसको ना 18 बना देती हूँ. 18 इंटू 10⁻⁴ स्क्वायर रूट के लिए हमेशा इसको ना इवन में कर देने का, ताकि आप उसका स्क्वायर रूट निकाल सको. अब क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 18 इंटू 10⁻² हो गया ना बाहर आके. इतना समझा, इतना समझा क्या, पहले बोलो. Yes, ma'am. हाँ यस अब लॉग कैसे अप्लाई करेंगे, हाफ स्क्वायर रूट मतलब हाफ log टू द बेस 10 18 इंटू 10⁻². तो पहले लॉग निकालो 18 का, उसके बाद 2 से डिवाइड करो, बाद में एंटी लॉग निकालो, आंसर आ गया. समझा. स्क्वायर रूट रहेगा तो हाफ इंटू लॉग टू द बेस 10 18. चलो 18 का लॉग बताओ फटाफट. व्हाट इज द लॉग ऑफ 18? मैं मेरे मोबाइल में चेक करती हूँ तब तक. अरे मोबाइल तो इधर चल रहा है, सॉरी नहीं चेक कर सकती मैं, तुम लोग ही बताओ 18 का लॉग बताओ. 2553. कितना? 2553. 2556 Miss 333. 3. ओके 3 इंटू 10⁻². चलो अभी 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2 0.6 2 2 जा, हाँ 2 2 6 जा 2 2 जा 2 7 जा 2 6 जा, तो 0.6276 इंटू 10⁻². अभी इसका एंटी लॉग लेंगे ना, एंटी लॉग ऑफ 0.6276 बराबर इंटू 10⁻². एंटी लॉग लो. 62 में 76 देखो आता है क्या, 62 में 76 देखो एंटी लॉग. कितना है, है भी क्या तुम लोग के पास लॉग बुक? ऐसे गरीबों जैसे बैठे रहेंगे तुम लोग, मुझे पता है. बोलो ना, मेरे पास नहीं है लॉग बुक बाबा. हेलो, लॉग बुक में जाओ, एंटी लॉग का पेज निकालो, 62 में जाओ, बड़े वाले कॉलम में 7 देखो, छोटे छोटे कॉलम में 6 देखो, दोनों को ऐड करो, आंसर बोलो. हेलो, यश कितना है आंसर? सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? कितना? 4 2 देखिए ऐड करो ना, 4236 प्लस 6. अच्छा मुझे एक काम दे दिए, देखो 4242 ना, आंसर क्या आएगा 4242 इंटू 10⁻². अभी देखो 0 + 1 1 मतलब इधर पे पॉइंट आएगा,
अगेन आंसर परफेक्ट एकदम आया। ऐसे छोड़ दिया तो भी ठीक है, तो 0.04222 बस हो गया, ये आ गया आपका अल्फा। समझा? चलो आज के लिए इतना Yes. बस हो गया। हाँ, शाम को हम लोग और न्यूमेरिकल्स कर लेंगे पूरा एसिड तक का जितना भी है वो पूरा, और फिर कल से हम लोग चालू करेंगे सॉलिबिलिटी वाला पार्ट, ठीक है? चलो बाय बाय एवरीवन, सी यू इन द इवनिंग। प्लीज ब्रिंग लॉग बुक्स, पेन, नोटबुक, सब बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लेने वाली हूँ। चलो एंड फॉर ऑल करती हूँ, ठीक है? बाय चलो मिस। बाय 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 बाय। Bye.